Good evening, everyone. Myself Javier Vikram Singh. Currently, I am in MTech Farm Machinery and Power Engineering in Mahamaya College of Agricultural Engineering and Technology, Akbarpur, Uttar Pradesh. Today's lecture is about tractor aided system. As we all know, tractor is an off-road vehicle which is used for agricultural purpose. So, here is 5 systems of tractor. In general, we used to say that tractor is comprised of 5 different systems, which are the first system is power generating system. How the power generates in a tractor? Just because of engine. So the first is power generating system. Which is basically known as engine. Second, if the engine starts, it should transmit power to the rear wheels and the PTO and other external sources of power. And for that, we need a transmission system, which is the second part of systems of tractor, power transmission system. It comprises of 4 different parts, such as clutch, then the power will go to gearbox, then to differential, then final drive. And after from the engine, the power supplies to clutch, gearbox, differential, final drive, and then to the rear wheels and the PTO. Then third system is hydraulics. Then, as we know that in all the vehicles there are power generating system, power transmission system, control system, electrical system. But what makes tractor different from other four-wheel vehicles? That is hydraulic system. Hydraulic system in tractor is used for hitching implements at different field purposes, for cultivation, sowing, and for harvesting. Then after, the fourth system is control system. In control system, tractor can be controlled by from steering, brakes. We cannot say clutch or accelerator that doesn't comply fully control system. We can control a tractor by having brakes. Accelerator is used for just giving more speed to the tractor. Then the fifth system is the fifth and final system of tractor is auto electrical system. What is an auto electrical system? It is the system of the tractor which supplies power to the different electrical equipments attached with the tractor, just like torque, headlights, indicators, horn, etc. And the power source for this is battery. Basically, we only define these 5 systems so that it is easier to learn in tractor from the basic to advanced. Now, as this lecture comprises for RPSC AA, so क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं पूरी एग्जाम में। अगर एक इंजन पे आया, देन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन अगर उन्होंने इंजन से पूछा, ट्रैक्टर के इंजन सिस्टम से, तो सबसे पहले पूछते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन में जो 4 स्ट्रोक इंजन का जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना होता है? That is 1, 3, 4, 2 and
ये दो फायरिंग ऑर्डर है जो एक बेसिक क्वेश्चन जनरली हर एग्जाम में आ सकता है, गेट में भी आ गया था 6 इयर्स बिफोर, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं पावर जनरेटिंग। Incoming voice call from +918. सबसे पहला सिस्टम है पावर जनरेटिंग सिस्टम। पावर जनरेटिंग सिस्टम क्या है? इंजन, जो कि है इंजन क्या करता है? ट्रैक्टर में पावर जनरेट करता है। वो एक पावर सोर्स है जिसकी वजह से ट्रैक्टर एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है। तो ट्रैक्टर का जो पावर जनरेटिंग सिस्टम इंजन है उसको भी हम लोग 5 सिस्टम्स में डिफाइन करते हैं, 5 सिस्टम्स, which makes it easier to understand। तो सबसे पहला जो सिस्टम है वो एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। सेकेंड फ्यूल सप्लाई सिस्टम। थर्ड lubrication system। फोर्थ कूलिंग सिस्टम। फिफ्थ इज कोई भी बुक में जो भी ट्रैक्टर के सिस्टम इंजन के सिस्टम दिए हुए हैं वो इसी सीरियल ऑर्डर में दिए हुए हैं, चाहे आप जे सहाय ले लीजिए, एससी जैन ले लीजिए, बट वो कहीं पे ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रैक्टर इंजन ये 5 सिस्टम्स के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि ये सबके प्रोसेसेस डिफरेंट और 5 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इसी के अकॉर्डिंग पढ़ने से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इजी हो जाता है इसे को। तो ये 5 सिस्टम है ट्रैक्टर के इंजन के पावर जनरेटिंग सिस्टम पे। सबसे पहला सिस्टम है एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, देन फ्यूल सप्लाई सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम एंड ऑयलिंग सिस्टम। अगर हम बेसिक से चले, एक बहुत ही शॉर्ट में इंजन की वर्किंग बताएं, तो इंजन क्या करता है? पावर जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ फ्यूल। तो सबसे पहले इंजन में क्या होता है? एयर सक होती है, एयर सक होगी इंजन में, इंजन के पिस्टन में जो कंबशन चैम्बर होता है उसमें एयर सक होगी, एयर इनटेक एयर फिल्टर से, देन एयर फिल्टर एयर इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू इंजन के कंबशन चैम्बर में जहां पे लगा होता है पिस्टन। देन पिस्टन जब Incoming voice call from +91-88871-9136। सबसे पहले एयर इनटेक एग्जॉस्ट सिस्टम में पिस्टन गया एडीसी टू बीडीसी, ठीक है। फिर जब दोबारा बीडीसी से टीडीसी पे आएगा तो एयर क्या होगी? वो प्रेशराइज्ड होगी और हाई टेम्परेचर पे होगी, क्योंकि एयर पे प्रेशर लगेगा जो भी एयर उस कंबशन चैम्बर के अंदर हो। देन उसमें जो भी फ्यूल है, जो टैंक में फ्यूल है, वो फ्यूल सप्लाई सिस्टम के थ्रू इस कंबशन चैम्बर में जाएगा जिससे फ्यूल बर्न हो। देन उसके बाद इंजन हो जाएगा स्टार्ट। इंजन स्टार्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्शन होगा इंजन में, क्योंकि उसमें कोई लुब्रिकेशन नहीं है, जो भी पार्ट्स होंगे मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, इसलिए पार्ट्स दिखते हैं। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट यूज करते हैं लुब्रिकेशन ऑयल, विच इज SAE 20W40, 30 और 40, इट डिपेंड्स दैट व्हाट काइंड ऑफ थिकर ऑयल इट इज, ठीक, एज पर कंपनी रिकमेंडेशन। तो ये यही डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऑयल इंजन में यूज होता है और कौन सा ऑयल हाइड्रोलिक में यूज होता है। देन उसके बाद क्या होगा? लुब्रिकेशन पूरे कंप्लीट चैम्बर में, इंजन के चैम्बर में लुब्रिकेशन होगा। देन आफ्टर कूलिंग सिस्टम, सामने एक रेडिएटर लगा होता है हर टाइप के इंजन, चाहे 5 HP हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, और उसमें
होता है क्या, वाटर या फिर कूलेंट, वही है कूलिंग सिस्टम। तो रेडिएटर से जो टैंक होगा वाटर टैंक, उससे पानी रेडिएटर के थ्रू पूरे इंजन के अंदर जाता है और इंजन को ठंडा करता है। देन गवर्निंग सिस्टम क्या करता है, इंजन की फ्यूल सप्लाई को बढ़ाता है और इंजन की पावर को इंक्रीज करने का काम करता है, फ्रॉम इट्स आइडियल आरपीएम टू रेटेड आरपीएम। अब ये एकदम बेसिक पार्ट है कैसे एक इंजन वर्क करता है इस 5 सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। देन जो इसमें क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो अगर हम ले लें एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट, तो एक क्वेश्चन अगर वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की फाउंडेशन दिख रहा है तो ये पूछेंगे कि एग्जॉस्ट साइड में जो प्रेशर होता है एयर का वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव प्रेशर। ऑल्सो फ्यूल सप्लाई सिस्टम से अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम से हम सबसे पहले पूछ सकते हैं कि जनरली व्हाट काइंड ऑफ पंप यूज हो रहा है ट्रैक्टर में। तो जनरली जो एफआईपी होती है वो 2 टाइप की होगी, एक होगी रोटरी और एक होगी इनलाइन। तो ज्यादातर पंप में इनलाइन सिस्टम का फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है, पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, तो अराउंड 1200 kg पर स्क्वायर जो फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर होगा। इंजेक्टर में फ्यूल इंजेक्टर, ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है। फिर लुब्रिकेशन सिस्टम में मैंने बताया था कि वो बहुत बेसिक, फिर अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछते हैं कि लुब्रिकेशन ऑयल कौन सा यूज होता है, कौन सा यूज करना चाहिए। देन आफ्टर अगर एक क्वेश्चन ले लिया जाए फोर्थ सिस्टम कूलिंग सिस्टम, तो कूलिंग सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। एक सबसे पहला कूलिंग सिस्टम होता है हॉपर टाइप, हॉपर टाइप में क्या होता था, बहुत पहले जो इंजन होते थे उसके ऊपर एक मेटल का पूरा एक बकेट बनाया जाता था, उस बकेट पे हॉट वाटर कोल्ड वाटर डाल दिया जाता था, वो वेपर प्रेशर से वेपर से के फॉर्म में वो हवा में उड़ जाता था और वो आपके किसी भी इंजन में यूज नहीं होता। सेकंड है 4 स्पीड सिस्टम, जो कि रेडिएटर के थ्रू वाटर टैंक के थ्रू रेडिएटर के थ्रू कैसे पानी पूरे इंजन में ट्रांसफर। थर्ड है 4 स्पीड के बाद थर्मोसाइकिल। अब कूलिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका क्वेश्चन हर बार आता है और बच्चे गलत करते हैं, वो है कौन सा, थर्मोसाइकिल टाइप। मेरे क्वेश्चन बता रहा था ये था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा आता है, कि कौन सा इसमें से मटेरियल कूलिंग सिस्टम में यूज होता है। सपोज 4 ऑप्शन कोई भी दे दे तो उसमें एक पार्ट होगा थर्मोस्टेट वॉल्व। थर्मोस्टेट वॉल्व का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ट्रैक्टर में। जनरली इस वॉल्व को जो भी मैकेनिक्स होते हैं वो निकाल देते हैं ये कहते हैं कि इससे इंजन का प्रेशर एफिशिएंसी लो होती है। तो थर्मोस्टेट वॉल्व एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसमें पुट अप होता है कि थर्मोस्टेट वॉल्व किस टेंपरेचर पे ओपन होता है। जनरली इट ओपन्स ऑन 70 डिग्री, इन सम केस देयर इज 80 डिग्री, बट 80 डिग्री सही नहीं है। इट ओपन्स ऑन 70 डिग्री एंड कंप्लीटली ओपन्स 80 डिग्री। दो अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है अगर आपको समझने के लिए बोला जाए तो एक 70 डिग्री एक 80 डिग्री। तो ये था कूलिंग सिस्टम। फिर आता है गवर्निंग सिस्टम। गवर्निंग सिस्टम में कैसे इंजन रन करता है और कितने टाइप के गवर्निंग सिस्टम होते हैं, तो उसमें उसका क्या वर्किंग है, कौन से टाइप के गवर्निंग सिस्टम का क्या वर्किंग है
ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन सेकेंड पार्ट है, ये सिर्फ एक बेसिक ओरिएंटेशन था पावर जनरेटिंग सिस्टम का। सेकेंड है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है? तो इंजन ने तो पावर जनरेट की, लेकिन उस पावर का यूज कहाँ पे आ रहा है? कहाँ पे ट्रैक्टर की पावर का यूज करते हैं? तो ट्रैक्टर की जो पावर है वो हम यूज करते हैं एक फ्लाईव्हील पे से एक अटैचमेंट करा के पुली के लिए। फ्लाईव्हील के सामने जनरली एक पुली दी जाती है, पुली के लिए। दूसरा हम लोग यूज करते हैं पीटीओ। तो पुली और पीटीओ तक पावर जाएगी कैसे? पीटीओ तक पावर कैसे जाएगी? उसके बीच में एक इंजन है अगर, और इंजन से इधर रियर व्हील्स और पीटीओ तक पावर जाने के लिए 3-4 चीजें। सबसे पहला आता है क्लच आएगा, क्लच के बाद आएगा गियर बॉक्स, देन आएगा डिफरेंशियल, देन आता है फाइनल ड्राइव, और आफ्टर फाइनल ड्राइव ये आता है रियल। फाइनल ड्राइव और डिफरेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, काफी हॉट टॉपिक्स में आता है क्लच, फाइनल ड्राइव और डिफरेंशियल किसी भी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के क्वेश्चन। तो आपने देख लिया कि ये है पावर ट्रांसमिशन का बेसिक, क्लच, देन उसके बाद आता है गियर बॉक्स, देन डिफरेंशियल, देन फाइनल। अब फाइनल ड्राइव 4 टाइप की है। तो अगर कोई क्वेश्चन दे दिया कि फाइनल ड्राइव इनमें से कौन सी एक फाइनल ड्राइव है, तो मैं चारों टाइप की फाइनल ड्राइव बता देता हूँ। 2 आती हैं IVR में, 2 आती हैं ODR में। ये इनपुट टाइप रिडक्शन है, ये है आउटपुट टाइप रिडक्शन। इनपुट टाइप रिडक्शन में आता है ब्रेक ग्राउंड स्टेट एक्सेल, और आउटपुट टाइप में एक आता है पोर्टल हाउसिंग टाइप, और दूसरा आता है प्लेनेटरी टाइप। विक्रम स्टेट एक्सेल इनबोर्ड में, फिर कॉमन हाउसिंग टाइप इनबोर्ड में, फिर पोर्टल हाउसिंग आउटबोर्ड में, और देन आता है प्लेनेटरी। ट्रैक्टर की कॉस्ट और ट्रैक्टर के HP के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है, ताकि अगर किसी के पास 35 HP का ट्रैक्टर है तो वो एक नॉर्मल किसान क्या करेगा, ज्यादा बड़ा ट्रैक्टर लेके और ज्यादा एडवांस मशीनरी लेके उसकी कॉस्टिंग भी कॉस्ट एफिशिएंट रहे फार्मर के अकॉर्डिंग, इसलिए ज्यादातर 35 HP में कॉमन हाउसिंग मिलता है। कुछ केसेस में स्टेट एक्सेल है, और लिखा पहले स्पॉट में भी आता है। फिर एडवांस ट्रैक्टर जो होते हैं 45+ HP के, उसमें देता है प्लेनेटरी टाइप, पोर्टल टाइप, कॉमन हाउसिंग टाइप ज्यादा। फिर इस पे आता है क्लच। अब ट्रैक्टर में ज्यादातर जो क्लच यूज होता है वो होता है ड्राइव। वैसे क्लच प्लेट तो 3 टाइप के हैं, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कौन कौन से क्लच प्लेट, डॉग, फ्लूइड, देन फ्रिक्शन। अगर कोई क्वेश्चन आए जिसमें ये 3-4 ऑप्शन हो तो सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन क्लच प्लेट ही लेंगे। ज्यादातर क्लच प्लेट्स जो यूज होते हैं वो फ्रिक्शन क्लच प्लेट से होते हैं जनरली। देन फ्लूइड क्लच प्लेट यूज होता है आपका मोटरसाइकिल, स्कूटर्स में, इस ट्रैक्टर्स में भी है बट बहुत रेयर। फिर आता है डॉग क्लच आपका रीपर, रोटावेटर, इसमें डॉग क्लच यूज होता है, ये क्लच। फिर उसके बाद अगर फाइनल ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच से अगर कुछ पूछ दिया जाए तो क्लच की वर्किंग क्या है, क्लच किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये प्रिंसिपल ऑफ क्लच इज फ्रिक्शन।
देन थर्ड सिस्टम जिसके बारे में बताया जाएगा वो है तीसरा आता है कंट्रोल सिस्टम। ट्रैक्टर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहले आपको बोलता है सर हम ट्रैक्टर को कंट्रोल करेंगे ब्रेक्स, देन स्टीयरिंग, देन वी यूज क्लच। और इसमें एक्सीलरेटर नहीं है। ट्रैक्टर कैन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय ब्रेक्स एंड स्टीयरिंग। क्लच एक मीडियम में गियर चेंज कर देगा और एक्सीलरेटर एक मीडियम में इंजन की स्पीड को बढ़ाएगा। सो ब्रेक और स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो स्टीयरिंग का जो गियर बॉक्स होता है वो जनरली 7 टाइप्स का होता है अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ फार्म मशीनरी। आप जेसाय उठा लीजिए, एससी जैन उठा लीजिए, सीपी नात्रा उठा लीजिए, ओके मलिक उठा लीजिए, सभी में गियर बॉक्स 7 टाइप्स। देन ब्रेक्स, ब्रेक जनरली ड्राई ब्रेक्स, ड्राई एंड वेट। फिर इसकी भी बहुत सारी सब क्लासिफिकेशन है। तो अगर ब्रेक से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो क्या क्वेश्चन होगा? किस मटेरियल का ब्रेक प्लेट या ब्रेक पैड बना होता है? देन कंट्रोल सिस्टम में सेकंड पार्ट होगा जो स्टीयरिंग का। स्टीयरिंग क्या काम करती है? ट्रैक्टर को मूव कराने का काम करती है। और किस पार्ट के ट्रैक्टर के किस पार्ट से जुड़ी होती है? फ्रंट एक्सल पार्ट, मतलब और ये है फ्रंट टायर, है ना? ये हो गया कंट्रोल सिस्टम। फिर आता है नेक्स्ट सिस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम। सो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम? पास्ट हाइड्रोलिक किसके वर्क करता है? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या स्टेट करता है कि लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल, we cannot compress it, we can only use the pressure to transmit power। और हाइड्रोलिक का सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो भी जेसीबी, बैकहो लोडर, ये सब आता है। ठीक है, हाइड्रोलिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो यही हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया उसके लुब्रिकेशन सिस्टम से। पहले एसई 80 था, अब एसई 90 है। देन एक क्वेश्चन आ जाएगा एसई का फुल फॉर्म बताइए। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स होता है। एसई का फुल फॉर्म सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ये यूएसए की एक बॉडी है जो डिसाइड करती है कि किस ग्रेड का ऑयल ट्रैक्टर में यूज होगा, किस पार्ट में या किसी भी दूसरी मशीनरी में किस ग्रेड का ऑयल यूज होगा। अब ये ऑयल ऐसे ही 30 क्यों है और ऐसे ही 90 क्यों है? इट डिपेंड्स अपॉन इट्स विस्कोसिटी। ये पे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज द नीड ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। एक तो ये हो गया कि ऐसे 80-90 what kind of oil is used. Second, in which principal hydraulic system works. Then what grade of oil is used in engine and hydraulic. After that, what is the meaning of that SAE, Society of Automotive Engineers, which is the body of USA. Then how is it decide that what kind of grade of oil is used in a tractor? It depends upon its viscosity.
Then what is viscosity? What is viscosity is the ability to resist the flow of a liquid is known as its viscosity. It offers resistance to the liquid. फिर उसके बाद why there is a need of viscosity. Viscosity की need क्या है? Viscosity की need क्यों? क्योंकि दो मेटल अगर आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे विद ईच अदर तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा तो इजीली वियर एंड टियर होगा। क्या होगा? वियर एंड टियर और जल्दी पार्ट्स होंगे। पर यही अगर एक ऑयल उसमें लगा दिया जाए तो अगर बहुत ही थिन, अगर बीच में एक ऑयल है किसी भी दो मेटल के कांटेक्ट में तो उसमें क्या होगा? वो एक लेयर फॉर्म कर लेगा, दोनों के बीच में एक लेयर फॉर्म होगी। तो जब उसके बीच में कोई कांटेक्ट होगा तो उसका वियर एंड टियर बहुत लीस्ट हो जाता है, अप टू 10% ओनली। 10% भी नहीं है, अराउंड ये हो जाता है 1%। तो बहुत धीरे वियर एंड टियर होता है, इसलिए जनरली हम लोग ऑयल का यूज करते हैं। देन कम टू नेक्स्ट, दैट इज ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये तो क्वेश्चन पूछेगा ये नहीं कि कभी सप्लाई कहां से बनती है ट्रैक्टर में। देन जो ये क्वेश्चन कभी नहीं होगा कि पावर सोर्स क्या है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का विद बैटरी। तो क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट एम्पियर बैटरी इज यूज्ड, कितने एम्पियर की बैटरी यूज होती है ट्रैक्टर में। और अगर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अगर 2 बैटरीज हैं 1+1 बैटरी तो कितने एम्पियर पावर जाएगी उसकी। देन थर्ड क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी होगी। तो नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी होगी, तो जितना निगेटिव प्लेट होगा उसका एक नंबर ऑफ निगेटिव प्लेट्स लेट इट बी n, तो पॉजिटिव प्लेट होंगी n+1। अब बैटरी के दो प्लेट्स को सेपरेट कौन करता है? उसके लिए आता है एक बैटरी सेपरेटर। बैटरी सेपरेटर प्लेट के बीच में लगा होता है सेपरेटर। अब पॉजिटिव प्लेट का कलर क्या होगा? डार्क। पॉजिटिव प्लेट का कलर होता है डार्क ब्राउन, नेगेटिव प्लेट का कलर होता है ग्रेश। पॉजिटिव प्लेट का कलर होता है डार्क ब्राउन, नेगेटिव प्लेट का कलर होता है ग्रे। अब देखिए ये नंबर ऑफ प्लेट्स हो गई। एक क्वेश्चन कितना पॉजिटिव का, नेगेटिव प्लेट कितना होगा, फिर डार्क पॉजिटिव का कलर, नेगेटिव का कलर कौन सा होगा, यूनिट क्या होती है बैटरी की, एम्पियर होती है। फिर दो बैटरी लगा दें कितने एम्पियर पावर, और एक जैसे एक अगर 24 नहीं होता, वैसे 26 एम्पियर पावर अगर एक है, दो बैटरी लगा देंगे तो कितनी होगी। और वो डिपेंड करता है कितनी पॉजिटिव प्लेट, एक प्लेट की पावर होगी 2 वोल्ट। ये याद रखना, एक प्लेट की पावर होगी 2 वोल्ट पावर, है ना। तो इसी के साथ ये पांचों टॉपिक्स के बारे में बेसिक ओरिएंटेशन खत्म होता है कि ट्रैक्टर में कितने सिस्टम है, 5। कौन कौन से? पावर जनरेटिंग सिस्टम विच इज नोन एज इंजन, देन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है, फिर हाइड्रोलिक सिस्टम है, फिर कंट्रोलिंग सिस्टम है, फिर ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। फिर मैंने बहुत एकदम बेसिक से बताया इंजन कैसे वर्क करता है, फिर इंजन के सिस्टम कौन कौन से हैं, एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम, देन आपका आता है लुब्रिकेशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम एंड टॉर्निंग सिस्टम। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में कुछ और